آج احتجاجی فرائیڈے جماعت اسلامی کا آج مہنگی بجلی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان۔ مختلف شہروں سے قافلے اسلام آباد کی طرف چل پڑے۔ پی ٹی آئی کا بھی آج ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کا اعلان۔ تحریک انصاف گرفتار رہنماؤں کی رہائی، مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گی۔ جے یو آئی سمیت تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتیں احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت بھی ان ایکشن۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ریڈ زون کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، کسی کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد پولیس کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب میں بھی 3 روز کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی۔ آج سے 28 جولائی تک جلد سے جلوسوں، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ آج احتجاجی فرائیڈے ہے اور صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا آج مہنگی بجلی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان تھا۔ مختلف شہروں سے قافلے اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بھی آج ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کا اعلان۔ تحریک انصاف گرفتار رہنماؤں کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گی، جبکہ جے یو آئی سمیت تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتیں احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت بھی ان ایکشن ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، کسی کو ریڈ زون میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد کا ڈی چوک مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کے احتجاج اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی صورتحال اس وقت گھمبیر اختیار ہو چکی ہے۔ کنٹینرز لگا کر اسلام آباد کے مختلف راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال وہاں سے ہم جانیں گے ہمارے نمائندے رانا عثمان سے، جو کہ اس وقت ڈی چوک میں ہی موجود ہیں۔ جی رانا عثمان۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کا آج دھرنا اور احتجاج کا اعلان ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد پولیس کی جانب سے پورے اسلام آباد کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ جڑواں شہروں سے آنے والی ٹریفک کے لیے جو راستے استعمال کیے جاتے ہیں ان راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اہم شاہراہوں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی چوک گیٹ جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری جو ہے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی احتجاج بغیر اجازت ہوگا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کی جانب سے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے چاہے پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہو۔ اسی حوالے سے یہاں پر کچھ صورتحال یوں ہے کہ اسلام آباد کی نفری تعینات ہے، جبکہ جمعۃ المبارک کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کا یہاں پر آنا جو ہے اس حوالے سے بتایا گیا۔ جی، جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا بھر سے کارکن اسلام آباد جائیں گے۔ پشاور سے جماعت اسلامی کا قافلہ نماز جمعہ کے بعد روانہ ہوگا۔ دھرنے میں شرکت کے لیے جماعت اسلامی پشاور میں کیا تیاریاں کر رہی ہے، اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جمیل خان سے، جو کہ اس وقت پشاور میں جماعت اسلامی کے دفتر میں مرکز میں موجود ہیں۔ بتائیے گا جمیل، اس وقت کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ نماز جمعہ کے بعد یہ قافلہ روانہ ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل، یقیناً جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنے کے لیے ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی تیاریاں جاری ہے، اور تقریباً صوبے کے تمام اضلاع سے جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکن جائیں گے، دھرنے میں شرکت کریں گے۔ تقریباً 2:30 بجے نکلیں گے۔ ابھی سے تقریباً تیاریاں عروج پہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے صوبائی رہنما اور سابق صوبائی وزیر حافظ حشمت صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ تیاریاں عروج پر ہیں، قافلے روانہ ہو چکے ہیں، اور ہم شیڈیول کے مطابق یہاں نماز جمعہ پڑھ کے پروفیسر ابراہیم صاحب کی قیادت میں یہاں سے روانہ ہوں گے۔ راستے میں دیگر جو اضلاع ہیں، چارسدہ، مردان اور اسی طرح دیر، جنوبی اضلاع، اور یہ قافلہ بن کے انشاءاللہ تعالی عصر تک انشاءاللہ ہم درنگاہ میں پہنچیں گے۔ جو پشاور سمیت خیبر محمد کا قافلہ ہے، یہ موٹر وے ٹول پلازا پشاور سے ہی اکٹھا ہو کے روانہ کیا جائے گا۔ پروفیسر ابراہیم صاحب جو صوبائی امیر ہے ان کی قیادت میں۔ جی
पंजाब में दफ़ा 144 दहशत गर्दी के पेश नज़र लगाई गई है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से सड़कों पर है 3 दिन घर पर आराम कर ले। तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख सड़कें और चौक चौराहों के गिर्द घूमती है। कराची में शारे फैसल पर काशिफ सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, निकालने की कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुमैया खुर्शीद से। जी सुमैया, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त शारे फैसल में मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे काशिफ सेंटर में जो आग लगी है उसमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग बिल्डिंग में मौजूद हैं, अभी भी इस बिल्डिंग में कुछ लोग मौजूद हैं और सुबह इतलात मौसूल हुई थी 11 बजे के करीब के काशिफ सेंटर में आग लग गई है। आग जो है वो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए कि स्नॉर्कल किस तरह लोगों को रेस्क्यू कर रहा है और इस वक्त यहाँ पर एक स्नॉर्कल लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, जबकि 7 से 8 जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड मौजूद है जो कि आग बुझाने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा ये वायर डग में आग लगी और ये आग दूसरे फ्लोर से जो है वो 10वें फ्लोर तक पहुंच गई और ये जो इमारत है इसमें आग पे तकरीबन काबू पा लिया गया है और इस वक्त जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। स्नॉर्कल जो है वो रेस्क्यू कर रही है लोगों को। रेस्क्यू ज़राए का भी यही कहना है कि यहाँ पर अभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उतारा जा रहा है और आग पे तकरीबन काबू पा लिया गया है। ये 15 मंजिला इमारत है और ज़राए का भी बताना है कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी इस बिल्डिंग में एग्जिट भी नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज बन्नू का दौरा करेंगे। वज़ीर आला अम जिरगे को एपेक्स कमेटी के फैसलों और 16 रुकाती मुआहदे से आगाह करेंगे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज। रोज़ के एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज बन्नू जाएंगे। बन्नू के मेन बाज़ार में जहाँ पर इस वक्त धरना भी जारी है और धरने का छठा रोज़ है, वहाँ पर उनके लिए बाकायदा तौर पर तमाम तरह इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम पार्टी वर्कर्स को इस जलसे में, इस तकरीब में शिरकत की दावत दी है और इसके अलावा बाकायदा तौर पर अपनी तंजीमों को हिदायत दी है कि वर्कर्स को लेकर आए। बन्नू धरने के ख़ात्मे के हवाले से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी की सिफारिशात रखेंगे। तमाम जो कबाइली अमायदीन हैं और जो बन्नू के अमायदीन हैं उनको एतमाद में लेंगे और उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि बन्नू धरना जिसका छठा रोज़ है उसका खात्मा किया जाए। तोरखम बॉर्डर पर स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाचा मीना में गोदाम से लाखों रुपए की ममनुआ गैर मुल्की सिगरेट, इंडियन अद्वियात और पान बरामद। गोदाम को सील कर दिया गया। और वेबको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। एक रोज में 152 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 99 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 74 लाख से ज्यादा जुर्माना। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि पंजाब भर के टीचिंग हॉस्पिटल्स में टेस्ट लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत की सरकारी लैब्स प्राइवेट करने के फैसले पर अनोखी तोजी। महकमा सेहत का कहना है आवाम का सरकारी अस्पतालों के टेस्ट पर एतमाद कम है। प्राइवेट टेस्ट पर अवाम एतमाद करते हैं, इसलिए आउटसोर्स किया जाएगा। लैब्स प्राइवेट होने से मरीजों को महंगे टेस्ट करवाना पड़ेंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों में टेस्ट लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा सेहत की सरकारी लैब्स प्राइवेट करने के फैसले पर अनोखी तोजी। महकमा सेहत का कहना है कि आवाम का सरकारी अस्पतालों के टेस्ट पर एतमाद कम है, प्राइवेट टेस्ट पर आवाम एतमाद करते हैं। ये मामला क्या है, जानेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियाँ नवीद से। जी मियाँ नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि इन लैब को आउटसोर्स करने के लिए पंजाब हुकूमत 1 अरब 93 करोड़ 32 लाख रुपए का बजट भी खर्च करेगी और सरकारी अस्पतालों में जो है वो जिनको जो लैब प्राइवेट की जाएगी, जिनको फराहम की जाएगी, उनको मुफ्त जगह भी दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जिससे लाखों जो मरीज ऐसे हैं जो मुफ्त टेस्ट की सहूलत उनको मौजूद थी लेकिन अब वो मुयसर नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में ये भी तस्दीक कर लिया कि इस वक्त जितनी भी लैब है वहाँ पर सहूलियत कम है, स्टाफ की कमी है और स्टाफ की नाक़िस तरबियत का भी इतराफ़ किया है। तो ये इन लैब को बेहतर करने के बजाय जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से फैसला किया गया कि इनको आउटसोर्स कर दिया जाए।
तकरीबन 1.5 अरब रुपए का TLA सिस्टम भी खरीदा जाएगा। तो बजट भी लगाया जाएगा, पैसे भी लगाए जाएंगे, लेकिन आउटसोर्स कर दिया जाएगा। जब आउटसोर्स किया जाएगा तो मरीजों की मुफ्त सहूलियात खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। लाहौर में अरबों रुपए से अस्पतालों की रिवैम्पिंग के मयार का पोल खुल गया। म्यो अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आबशार बहने लगी। नए बनने वाली इमरजेंसी के 6 ऑपरेशन थिएटर्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कीमती मशीनरी खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात देंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहसिन अलवी हमारे साथ हैं। मोहसिन, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? आज मदीहा, ये अरबों रुपए लगा के निगरान हुकूमत के दौर में इसको रिवैम्प किया गया था, इमरजेंसी नहीं बनाई गई थी, पूरा जो है उड़िया तब्दील किया गया। लेकिन अब इसकी सूरत हाल ये है कि इसके अंदर 6 ऑपरेशन थिएटर हैं। कल रात जो आज बारिश हुई है उसके बाद इसके मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी जमा हो गया। जैसे कि फुटेज में आप देख सकते हैं कि आबशार की सूरत में पानी छतों से गिर रहा है, न सिर्फ कॉरिडोर के अंदर बल्कि ऑपरेशन थिएटर और नीचे कमरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है और बरामदों के अंदर भी पानी इसी तरह से जमा है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है बल्कि ऑपरेशन थिएटर में रखी कीमती जो मशीनरी है वो भी खराब होने का खदशा पैदा हुआ है और वेंटिलेटर के अंदर भी काम रुक गया है। इस बारिश के बाद इस सूरत हाल पैदा होने के बाद अरबों रुपए जो रिटर्न के ऊपर लगाए गए उसके मैयार जो है उसके ऊपर सवालात खड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अलवी। खबर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जाली हामिला खवातीन के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे नशुरमा न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हजारों खवातीन को रजिस्टर्ड किया गया। 26,328 जाली हामिला खवातीन को करोड़ों रुपए भी दिए गए। ये मामला क्या है, इस बारे में डिटेल्स लेते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस। जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जाली हमला खवातीन के नाम पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से करोड़ों रुपए बटोरे जाने का इंकशाफ हुआ है। सिलसिले में दस्तावेजात में यह बात सामने आई है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है निशुरमा न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हजारों खवातीन को रजिस्टर किया गया। 26,328 जाली हमला खवातीन को करोड़ों रुपए भी नवाजे गए और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 1,23,884 हमला खवातीन को 42 करोड़ 49 लाख रुपए दिए गए। 26,328 हमला भर के इमदाद लेने वाली खवातीन ने साल के बाद भी बच्चे की पैदाइश का इंतजार ना करवाया। करोड़ों रुपए वसूल करके बच्चों के इंतजार करवाने से खवातीन की जानिब से हमला होने का मामला भी मशकूक होकर रह गया, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो वजीरा करप्शन की निशान नहीं थी पर अफसरों ने अमल जाया होने को जवाब बनाया और मुकम्मल रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा खजाना पंजाब ने महकमों को बजट तजावीज़ अरसाल करने की हिदायत कर दी है। रवां बरस अक्टूबर के इख्तिताम तक महकमे नए बजट के तखमीना जात तैयार करेंगे। 31 दिसंबर तक MPAs के साथ मुशावरत के बाद तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। तमाम महकमों को सालाना अखराजात की तफसीलात 30 नवंबर तक फ्राहम करने की हिदायत कर दी गई है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि PTI में मखसूस नशिस्तों पर सनम जावेद के नाम पर इख्तलाफात सामने आने लग गए हैं। मुताबिद सीनियर रहनुमाओं ने मुखालफत कर दी है। पार्टी कारकुन भी सनम जावेद की नामजदगी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि PTI में मखसूस नशिस्तों पर सनम जावेद के नाम पर इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। मुतादिद सीनियर रहनुमाओं ने मुखालिफत कर दी है। पार्टी कारकुन भी सनम जावेद की नामजदगी से नाखुश हैं। तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में लीतो लाल से काम ले रहे हैं। इन्हें अपने तमाम गैर आइनी इकदाम का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तासुब की बुनियाद पर PTI के खिलाफ गैर आइनी इकदाम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अपने फैसले में लिखा है कि मखसूस नशिस्तें PTI की हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में लीतो लाल से काम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
कानूनी और सियासी हलकों में ये तासुर आम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सियासी झुकाव रखते हैं और इस केस को मौजूदा हालात में मुकर्रर करना मायने खेज है। कीनिया की अदालत के फैसले के बाद अवामी हलकों की जानिब से ये मुतालिबा जोर पकड़ रहा है कि वो तमाम अनासिर जो रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में मसरूफ थे उनकी निशानदेही की जाए और उन्हें फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को जब असकुत नोटिस पर समाअत करे तो मज़कूरा बाला हक़ाइक़ को भी मद्देनजर रखे। पंजाब के किसानों को बिजली के भारी बिलों और डीजल के अखराजात से निजात दिलाने का आज़म वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। 25 एकड़ अराजी तक के मालिक काश्तकार ज़राई अहल होंगे। काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। के कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब के बाद कराची के जिना अस्पताल में भी लाखों रुपए की अद्वियात चोरी का इंकशाफ हुआ है। सरकारी मुलाजिम अद्वियात चोर निकला। सर्जिकल वार्ड यूनिट 2 का नर्सिंग अटेंडेंट रंगे हाथों पकड़ा गया है। इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर मोहम्मद सलमान की सरबराही में बना दी है। इस बारे में तफसीलात देंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत, क्या अपडेट करेंगे इस खबर के बारे में? देखिए, जिना अस्पताल में जो अदम अद्वियात की जो दस्तावेज़ी का मसला था वो काफ़ी से चल रहा था। ताहम इंतजामिया ने एक सरकारी मुलाजिम है जिसको मौका वारदात से पकड़ा, जो सरेआम जो है अद्वियात चोरी में मुलविस था। सर्जिकल वार्ड 2 का जो नर्सिंग अटेंडेंट है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसके बाद इंतजामिया ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई गई है। अरसे दराज से जो वो रईस थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें दवाएं नहीं मिलती हैं और वो एक एक जो चीज़ है वो बाहर से खरीदते हैं, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए ये जो कार्रवाई की है, जिसमें एक शख्स जो है जो अस्पताल का मुलाजिम बताया जाता है जिसको रंगे हाथों पकड़ा है चोरी की जो अद्वियात हैं उसे फरोख्त करते हुए। इस पर मजीद जो है वो इंक्वायरी की जा रही है और इसमें मजीद जरा कहना है कि मजीद लोग भी मुलव्विस हैं और तमाम तर लोगों को जो है वो सामने लाकर और कमेटी बना दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका शफकत अजीज।